Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you read the earlier chapter और उसके जितने भी exercise part थे आपने complete कर लिए होंगे. So now let's move into the new fresh chapter, that is chapter 4, and the chapter name is Animal and Plants Product. Let's start the chapter. All living things need food for their survival. Humans obtain their food from plants and animals. Plants are the only living things which can make their own food, so they are called producers. अब यहाँ पर बोला है कि सभी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको खाना चाहिए सरवाइव करने के लिए, और ह्यूमंस जो अपना खाना जो है वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? टू सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। प्लांट्स एक ऐसे लौते लिविंग बीइंग है या लिविंग थिंग है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ओके, एंड इसी वजह से उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज फूड फॉर प्लांट्स। The process by which green plants make their own food is called photosynthesis. Plants make food with the help of carbon dioxide, water, the green pigment chlorophyll, and sunlight. The roots of a plant suck in water from the soil. The stem carries the water to the leaves. The leaves of a plant absorb a gas called carbon dioxide present in the air. Chlorophyll, which gives the green color to the leaves, traps the sunlight. Thus, the plants use water and carbon dioxide to make food. The energy for making food is obtained from the sunlight. It is chlorophyll that traps the sunlight for making food. Therefore, only plants that contain chlorophyll can make their own food. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो जो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्लांट्स अपना खाना जो है वो बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से। रूट्स जो होते हैं प्लांट के वो पानी को सक करते हैं सॉइल से, एंड जो स्टेम्स होते हैं वो पानी को पहुंचाते हैं कहाँ पर? लीव्स में। लीव्स जिसको हम किचन बोलते हैं प्लांट का जो खाना बनाता है, तो लीव्स जो है वो ऑब्जॉर्व करता है गैस को, कौन सी गैस को? कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड रिलीज करता है ऑक्सीजन। एंड क्लोरोफिल जो कि कौन सा कलर देता है? लीफ को ग्रीन कलर देता है, वो सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है, फॉर मेकिंग द फूड। एंड जो एनर्जी है जिसमें मतलब खाना बनाने के लिए हमें प्लांट्स को एनर्जी चाहिए होती है, वो कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है। एंड ये क्लोरोफिल ही है जो ट्रैप करता है सनलाइट को ताकि वो खाना बना सके। देयरफॉर जो प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वही सिर्फ अपना खाना बना सकते हैं। Here you can see the figure of photosynthesis in a plant. You can see the sunlight, carbon dioxide, oxygen is released over there. Water is also there. Okay. Now before moving further, there is a point think and answer. How do you think plants can be protected from pests? कैसे हम प्लांट्स को पेस्ट से बचा सकते हैं? पेस्ट यानी कि चूहे वगैरह, रैट वगैरह, तो उनसे कैसे बचा सकते हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। Now the next part is food for non-green plants. There are many plants like mushroom, molds and fungi which do not have chlorophyll. Hence, they cannot prepare their own food. Such plants obtain on from the dead remains of plants and animals present in the soil. अब यहाँ पर बोला है कि कुछ ऐसे भी प्लांट है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। तो जैसे कि मशरूम हो गए, मोल्ड्स हो गए, फंगाई हो गए जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल ही नहीं है। ओके तो वो जो प्लांट्स है वो डेड रिमेन्स जो होते हैं यानी कि एनिमल्स के, प्लांट्स के, उन्हीं को वो लाइक कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। Okay, now before going further, there is a point. Do you know mushroom is actually a fungi that we eat as food. Mushroom actually में क्या है? एक fungi है जो हम as a food खाते हैं। अब mushroom कुछ ऐसे होते हैं जो eatable होते हैं, खाने लायक होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो poisonous होते हैं। Now the next thing is insectivorous plants. There are certain plants which eat insects for food. Such plants are known as insectivorous plant. They trap insects and then digest them. Some such plants are Venus flytrap, pitcher plant and sundew. कुछ ऐसे भी प्लांट है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जो किस पे डिपेंड करते हैं? इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं। उनको इंसेक्ट्स को वो खाते हैं, उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं क्योंकि वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। एंड वो क्या करते हैं? इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं क्योंकि वही उनके लिए खाना है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पिचर प्लांट हो गया और सनड्यू हो गया। लेट्स नो अबाउट इट। फर्स्ट वन इज पिचर प्लांट. The leaf of the pitcher plant is modified into a pitcher-like structure. When the insect sits on the pitcher, the lid closes and the pitcher traps the insect. The digestive juices that are secreted by the plant help in digesting the insect. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ये पिचर प्लांट है इसका जो शेप है वो पिचर फॉर्म में है, इसकी जो लीफ है वो पिचर फॉर्म में मॉडिफाई हो रखी है।
एंड उसके ऊपर क्या एक लिड है। जब वो इंसेक्ट कोई उस पर बैठता है तो वो लिड एकदम से क्लोज हो जाता है और वो इंसेक्ट वहां पर ट्रैप हो जाता है क्योंकि उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, तो वहां पर वो ट्रैप हो जाता है, फिर वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करता है पिचर प्लांट, और फिर वो उसे इजिली डाइजेस्ट कर लेता है, खा लेता है। फिर जैसे ही वो डाइजेस्ट हो जाता है फिर वैसे ओपन कर देता है लिड। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर भी इमेज देख सकते हो पिचर प्लांट का। नाउ द नेक्स्ट इज Venus flytrap. Spiders and insects sit on this plant. There are terminal lobes hinged at the midrib which form the trap. The lobes snap shut when stimulated by insects. A period of 10 days is taken by the plant to digest the insect, after which the trap reopens to trap the new insects. वीनस फ्लाई ट्रैप का इमेज यहाँ पर देख सकते हो। तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि स्पाइडर्स और इंसेक्ट्स जो है वो इस प्लांट में जब बैठते हैं तो इसमें ना कुछ ऐसे टर्मिनल लॉब्स होते हैं जो कि हिंज होते हैं मिडरिब फॉर्म में, जैसे आप फिगर में देख सकते हो, जो एक ट्रैप फॉर्म बना देते हैं। जब वो इंसेक्ट उस पर लैंड होते हैं या स्पाइडर उस पर लैंड होते हैं तो वो जो लॉब्स है उसके वो एकदम से ऐसे बंद हो जाते हैं, एकदम से बंद हो जाते हैं। एंड इसमें क्या होता है, इंसेक्ट फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता बाहर, और वो डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से उसे वो डाइजेस्ट करते हैं। पर इसमें इनका डाइजेशन जो प्रोसेस होता है कम से कम इनको 10 दिन लगता है डाइजेस्ट करने में उस खाने को। फिर जब वो डाइजेस्ट कर लेते हैं 10 दिन बाद क्या होता है, वो फिर से रीओपन होते हैं, फिर से खुलते हैं, ताकि जो नया इंसेक्ट है वो उन पे बैठे और उनको वो खा सके। ओके, नेक्स्ट वन इज सनड्यू। Sundews are insectivorous plants which are ingenious in catching their prey. They have sticky pads that trap insects. The plants are also attractive, often brightly colored rosettes. Sundew plant is also called Drosera plant. सनड्यू प्लांट जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये काफी ज्यादा इंजीनियस टाइप का ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो इजीली कैच कर लेते हैं प्रे को। इनका क्या होता है कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है, स्टिकी टाइप की होती है, जिसमें इंसेक्ट जो है वो स्टिक हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं और वो उन्हें इजिली कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। इनका जो ब्राइटली कलर्ड रोजेट्स है वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को। एंड सनड्यू प्लांट जो है वो एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज ड्रोसेरा प्लांट। Now before going further, there is an activity. Take two potted plants, put a layer of Vaseline on one leaf of a plant, mark the plants as A and B, keep the plants in sunlight for a day. You will notice that the leaf with a layer of Vaseline turns yellow as it is unable to make its food. आपको दो प्लांट लेने हैं, एक प्लांट के लीफ में आपको क्या करना है, दोनों को वैसे पहले आपको लेबल करना है ए एंड बी। एक प्लांट के लीफ में आपको अच्छे से वैसलीन का लेयर लगाना है, आपको सन में रखना है 2 दिन के लिए। 2 दिन बाद आप जब देखोगे तो देखोगे कि जो प्लांट जिसमें आपने वैसलीन का लेयर लगाया था जिसके लीफ में, वो येलो कलर का हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है अब, और वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज पैरासिटिक प्लांट्स. Some plants grow on the other plant to obtain food. Example, yellow dodder. Such plants are called parasitic plants. कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो खाना ऑब्टेन करते हैं दूसरे प्लांट से। उन प्लांट का कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रखा है, येलो डॉडर, जो कि हम क्या बुलाते हैं, इन प्लांट्स को पैरासिटिक प्लांट बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरे की बॉडी में रह रहे हैं, वहीं पर ग्रो कर रहे हैं और उन्हीं का जो खाना है वो उसे खा रहे हैं एज अ पैरासाइट। नाउ नेक्स्ट इज फूड फॉर एनिमल्स. Unlike plants, animals cannot make their own food. They depend on plants and other animals for food. Animals like cow, goat, and sheep eat plants and parts of plant. They are known as herbivores. They are also called primary consumers. अब यहाँ पर बोला है कि प्लांट्स के अलावा भी जो एनिमल्स है वो भी डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जो एनिमल्स है वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे भी, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो डिपेंड करते ही है, पर वो दूसरे एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं खाने के लिए। अब कुछ ऐसे एनिमल है जैसे काऊ हो गए, बफेलो हो गए, गोट हो गए, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और पार्ट ऑफ प्लांट खाते हैं, इसीलिए कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, हार्बीवोर के अंदर आते हैं। इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट कंज्यूमर, जो कि सबसे पहले किसको खाते हैं, प्लांट को खाते हैं। ओके, here you can see the images of buffalo, goat, cow and sheep. Now the next point is some animals feed on the flesh of the animals killed by them. Animals like lion, tiger and cheetah are known as carnivores. They are called the secondary consumers. कुछ ऐसे जानवर है जो फ्लैश खाते हैं दूसरे जानवर को मार के, उनके एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, लायन, टाइगर एंड चीता। इनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं एंड ये इनको हम एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर्स आफ्टर द प्राइमरी वन। ओके,
Now the next point is some animals like cockroaches, humans and crows eat both plants and animals for their food. They are called omnivores. कुछ ऐसे भी है जो दोनों चीज खाते हैं. इसमें कौन कौन आ जाते हैं? कॉकरोचेस, ह्यूमंस एंड क्रो. तो इनको हम क्या बुलाते हैं? ओमनिवोर्स बुलाते हैं, जो दोनों प्लांट एंड एनिमल खाते हैं. Now next one is some animals live on the body of other animals called host and obtain their food from them. Such animals are known as parasites. Example mosquitoes and roundworm. कुछ ऐसे जानवर भी है जो दूसरे जानवर की बॉडी में रहते हैं एज अ होस्ट. ओके, तो जो जानवर अपनी बॉडी में उन्हें रहने देता है वो होस्ट फॉर्म में हो गया. ठीक है, एंड वो उन्हीं का खाना जो है उन्हें कंज्यूम करते हैं. जैसे कि इसी वजह से इनको हम क्या बुलाते हैं? पैरासाइट्स बुलाते हैं. जैसे आपने प्लांट में भी देखा था. इनके एग्जांपल है मस्कीटो एंड राउंडवॉर्म. मस्कीटो जो कि ह्यूमंस का ब्लड सक करते हैं, तो एक तरीके से वो होस्ट की बॉडी में बैठकर उनका ब्लड सक कर रहे खा रहे हैं. और जो ये राउंडवॉर्म्स है ये पेट के कीड़े होते हैं. पेट में जो भी हम खाना खाते हैं तो वो खाना जो है वो हमें ना लगकर, हमारी बॉडी को ना लगकर, वो जो कीड़े होते हैं वही उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं. Okay, now next is some organism derive their food from decayed dead remain of other organism. They are known as decomposers. Example bacteria. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं. और इसके एग्जांपल आपको दे रखा है बैक्टीरिया. Now next one is animals that eat the flesh of the dead animals are called scavengers. They help to keep the environment clean. Examples hyenas and vultures. कुछ ऐसे भी जानवर है जो फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल का, डेड एनिमल का, उन एनिमल का जिनका पहले से शिकार हो रखा होता है लायन एंड टाइगर के थ्रू, तो उनको वो कंज्यूम करते हैं. उनको हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं. और इसके एग्जांपल आपको दे रखा है हाइनास एंड वल्चर. तो एक तरीके से ये एनवायरमेंट को, हमारे एनवायरमेंट को क्लीन भी करते हैं. ओके, now let's talk about food chain. Every living being on this planet is dependent on other organisms for its food. A frog eats an insect, a snake eats a frog, and so on. The process of eating and being eaten is known as food chain. Energy is transferred across the food chain. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि हर एक लिविंग बीइंग जो है हमारे इस प्लैनेट में, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. ओके, निर्भर है खाने के लिए. जैसे फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट को खाता है, और फिर फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खाता है. ओके, स्नेक को कौन खाएगा? आगे जाकर ईगल खाएगी. ओके, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ईटिंग एंड बीइंग ईटन, मतलब खा तो रहे और ऊपर से किसी कोई और जो है उनका खाना भी वो दूसरा एनिमल है, लिविंग बीइंग है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं. ये चलता रहता है. एंड एनर्जी इसमें क्या होती है? ट्रांसफर होती है फ्रॉम द प्राइमरी वन टू द सेकेंडरी देन टर्शियरी. ओके, सो आप पहला फूड चेन देख सकते हो यहाँ पर. फर्स्ट इज द प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर ऑब्वियसली प्लांट ही है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो है मेज, यहाँ पर दे रखा. और जो प्राइमरी कंज्यूमर, जो सबसे पहला कंज्यूमर जो प्लांट को खाएगा वो है लोकस्ट. ओके, देन उसके बाद जो लोकस्ट को खाएगा वो क्या है? लिजर्ड, सेकेंडरी कंज्यूमर. फिर टर्शियरी कंज्यूमर में क्या आ जाएगा? स्नेक, जो लिजर्ड को खाएगा. नाउ नेक्स्ट फूड चेन इज food chain 2. इसमें carrot, that is the main producer, then primary consumer is rabbit, secondary consumer is fox, and tertiary consumer कौन है? tiger. Next food chain is water plant. This is the producer. Small fishes, ये primary consumer जो water plant को खाएंगे. Then larger fishes जो small fish को खाएंगे, secondary consumer है. Tertiary consumer कौन है? shark, जो larger fish को खाएंगे या small fish को भी खाते हैं वो. Okay. Now the next point is food web. Many organisms are dependent on more than one type of food. Like a tiger may eat a goat or a deer or any other animal as well. Likewise, grass may be eaten by a goat, cow or other herbivores. Hence, there are many interconnected food chains in nature. Such interconnected food chain form a food web. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज्यादा चीजों में डिपेंड करते हैं खाने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर जो है, टाइगर के पास लाइक ऑप्शंस होता है. वो सिर्फ गोट को ही नहीं खाएंगे, वो गोट को भी खा सकते हैं, डियर को भी खा सकते हैं, कोई और जानवर को भी खा सकता है. ओके, ऐसे ही जो ग्रास ईटिंग है, लाइक जैसे ग्रास है उसे कोई भी जानवर खा सकता है, गोट खा सकते हैं, काऊ, शीप, कोई भी. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फूड चेन है ये एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ. तो ये जो इंटरकनेक्शन है फूड चेन का, उसे हम क्या बोलते हैं? फूड वेब. जो एक बड़ा सा फूड वेब है, जैसे कि आप अभी देखोगे इस फिगर में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो. तो इसमें आप देख रहे हो कि जो कॉर्न है, यानी कि जो प्लांट है, उसको पहले ग्रास हॉपर खा रहा है, फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है. अब फ्रॉग जो है उसे कोई भी खा सकता है, या तो स्नेक खा सकता है, ईगल खा सकता है. ठीक है, ऐसी बटरफ्लाई है. बटरफ्लाई फ्लावरिंग प्लांट का क्या करती है? नेक्टर को सक करती है. अब बटरफ्लाई को फ्रॉग भी खा सकता है, ड्रैगन फ्लाई भी खा सकती है. ठीक है, फिर उसके बाद जो ड्रैगन फ्लाई है उसे कोई थ्रश, एक बर्ड है, वो खा सकती है.
ओके, नेक्स्ट वन आपको दे रखा है लेवेंडर। लेवेंडर भी ऑब्वियसली दैट इज बटरफ्लाई, मतलब बटरफ्लाई कोई सा भी फ्लावर का नेक्टर जो है, फ्लावर को नेक्टर जो है उसका सक कर सकती है। एंड मैंगोज, नेक्स्ट वन आपको मैंगोज दे रखा है। मैंगोज एक फ्रूट फ्लाई जो है मैंगोज को खा रहा है। फ्रूट फ्लाई को कौन खा रहा है? ड्रैगन फ्लाई खा रहा है, या थ्रश भी खा सकता है उसे। तो ये जो फूड वेब है ये फूड चेन से ही मिलकर बना है। ओके, now as we have read this chapter, let's move into the point vocabulary. First one is chlorophyll, green colored pigment present in the leaf. Next one is photosynthesis, the process of making food by themselves in the presence of sunlight. Next one is insectivorous plant, plants that eat insects for food. Next one is herbivores, animals that eat plants for their food. Next one is carnivores, animals that eat flesh of the other one for their food. Next one, omnivores, animals that eat both plants and animals. Next one, parasites, organisms that live on other organisms and obtain food from them. Next one, food chain, the process of eating and being eaten for transforming energy. Next one, food web, many interconnected food chains. Now the next point is things to remember. First one, plants make their food, their green leaves by the process of photosynthesis. Plants make their food in their green leaves by the process of photosynthesis. They are called producers. Next one, plants use carbon dioxide, water and sunlight in the presence of chlorophyll to prepare food. Next one, plants that eat insects are called insectivorous plant. Next one, animals depended on plants or other animals for food. Many food chains together form food webs. A flow of energy occur across the food chain. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को फिर से अच्छे से पढ़ना है और इसमें प्रैक्टिस में जितनी भी एक्सरसाइज पार्ट दे रखे हैं उन्हें कंप्लीट करना है। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।